مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کے لیے جد وسلم کے سامنے جب ہمارے اور آپ کے نام اعمال کا دفتر کھلے گا تو آپ اپنے ان عظیم ثوابوں کو دیکھ کر بارگاہ مولا میں عرض کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ پروردگار عالم، ہمارے اعمال تو اس قدر نہیں تھے کہ آج پہاڑوں کی تعداد میں اونچے اونچے یہ دین کے کام کے لیے، مسجدوں کی تعمیر کے لیے، جہاد بالمال سے جو کام کیا تھا انہی کاموں کو اور تمہاری انہی خدمات کو قبول کر لیا گیا ہے اور پہاڑوں کے برابر ثواب عطا کر دیا گیا ہے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو نہایت ہی نشاط طرح کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ یہ ہے دامن، یہ ہے غریباں، آؤ کچھ کام کریں، موسم کا متقتے رہنا کام نہیں دیوان۔ اور آقا حضرت نے تو بہت پیاری بات فرمائی ہے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کریں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کریں، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو، انشاءاللہ تعالی ضرور بھی ضرور دینی خدمت کے تعلق سے ہمارا جو بھی کام ہوگا ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی۔ ابھی آپ نے جناب حاجی شمشیر صاحب خدا بخش جو جمعیت فیض اسلام کی صدر ہیں، ان سے ان کی پرسوز آواز میں جمعیت فیض اسلام کے پروگرام کو سماعت فرمایا کہ الحمدللہ جو اللہ کی تعریف ہے کہ کہنے سے بہت سے بات آ کیا ہے، اور جو مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں ان مسجدوں کے قب و مینار آج بھی آپ کی دینی خدمات کے لیے شاہد ہیں۔ اسلامیہ، ہم آقا کے غلاموں کو یہ معلوم ہے کہ آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو مسلمانوں کی یہ شدید ضرورت تھی کہ وہاں مسجد کی تعمیر ہو۔ میرے آقا ساری کائنات کے داتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے تعمیر کے پروگرام کو صحابہ کرام کے سامنے اسلام کے روح رواں جناب حاجی محمد اسلم صاحب نے اپیل ابھی سنا، اور مدینے سے جو اسپرٹ ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے ان کے دلوں کو گرمایا، پروردگار عالم ان کے دل کو مضبوط فرمائے۔ انہوں نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ وہ اپنے احباب سے اکٹھا کر کے المدینہ مسجد کو 5000 دیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، قربان جائیں اس ادائے بے نیازی پر۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے سلسلے میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کی خریداری کے لیے پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، یا رسول اللہ یہ زندگی کا سرمایہ ہے، اسے قبول فرما لیجئے۔ میرے آقا نے اس خدمت کو قبول فرمایا اور زمین کی تعمیر کے لیے اس ہدیے کو قبول فرمایا۔ ہماری خوش قسمتی کا کیا کہنا کہ اسی خاندان کے چشم و چراغ حضور قائد سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اعظم اس مسجد کی تعمیر کے لیے 1100 عطا فرما رہے ہیں۔ پروردگار عالم ان کے ساتھ اللہ اکبر۔ حاجی عبدالرزاق صاحب جو برطانیہ سے تشریف لائے ہیں، ہمارے حضرت کے معتقد خاص اور مسجدوں اور دینی کار میں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے رزق حلال میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے اور بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ انہوں نے 5000 کا اعلان فرمایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ برطانیہ سے بھیج دیں گے۔ تو 100 ایسے سرفروشوں کی ضرورت ہے۔ اگر 100 اس مجمع سے میری نگاہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایسے بے شمار حضرات موجود ہیں کہ 5000 ان کے لیے، یہاں کے بسنے والے غیر مسلمانوں کے لیے کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے۔ اگر 100 ایسے افراد مل جاتے ہیں، کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی المدینہ مسجد کی تعمیر مکمل ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، الحمدللہ، نعرہ تکبیر۔ پیرس سے آنے والے مہمان دیکھیے، ہالینڈ کے بسنے والے مسلمان کو نہیں ہے، پیرس سے بھی آنے والے مسلمان 500 پیرس فرنک عطا فرمایا، پروردگار عالم سے قبول فرمائے۔ جی، مسٹر اور مسز عبدالرشید صاحب کی طرف سے 1100 اللہ تعالیٰ فرنک، اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 100 ایسے
सरफरोशों की जरूरत है जो 5-5 हजार का अपना अतिया बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करवा दे, बारगाह खुदा में पेश करवा दे। बारगाह खुदा में आपका अतिया होगा, इसलिए कि यही आपने सुना कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि बैतन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है परवरदिगार आलम जन्नत में उसके लिए महल अता फरमाता है। यकीनी आवाज से और ईमानी फरासत से आज भी अपने कानों को गुंबद खतरा की तरफ लगाएं, तो आज भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमात तय्यबात आपके कानों में रस घोलते हुए महसूस किए जाएंगे कि ऐ मेरे उम्मतियों, तुम खुदा के घर को इस जमीन पर आप बनाओ, आबाद करो, मैं तुम्हारे लिए समानत देता हूँ कि जन्नत में तुम्हारे लिए महल बनाया जाएगा। इससे बढ़कर के खुशकिस्मती और इससे बढ़कर के सादतमंदी क्या हो सकती है कि फखरे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमात तय्यबात आज भी हमें जमानत दे रहे हैं। 100 ऐसे सरफरोशों की जरूरत है जो 5-5 हजार, ये किसी घर की तामीर के लिए नहीं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया दे रहे हैं। दुनिया में जाने कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती हैं, लेकिन उन बिल्डिंगों के बनने के लिए सवाब की कोई जिम्मेदारी नहीं। खुदा की कसम, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने फरमाया कि मस्जिद के तामीर के लिए जो एक ईंट भी बनाता है, सर्फ करता है, परवरदिगार आलम जन्नत में उसको महल अता फरमाएगा। एक ईंट ऐसा नहीं है कि जिसने पूरी मस्जिद को मुकम्मल बनाया उसी के लिए ये जन्नत की खुशखबरी और उसके महल की खुशखबरी है, बल्कि अगर जिसने फर्श के लिए हिस्सा लिया उसके लिए भी ये खुशखबरी है, जिसने पंखे के लिए हिस्सा लिया उसके लिए भी ये खुशखबरी है, जिसने लाइट के लिए हिस्सा लिया उसके लिए भी खुशखबरी है, जिसने हीटर के लिए हिस्सा लिया उसके लिए भी खुशखबरी है, जिसके वजूद करने के लिए इंतजाम किया उसके लिए भी खुशखबरी है। तो ऐ हालैंड के बसने वाले गैर मुसलमानों, मैं आपकी आवाज ज़मीन को झिझोड़ते हुए अर्ज करूंगा कि 100 ऐसे दीवानों की जरूरत है, 100 ऐसे हुजूर के गुलामों की जरूरत है जो 5-5 हजार का नजराना बारगाह खुदा में और बारगाह रसूल में पेश करके आज ही जन्नत में अपनी सीट को रिजर्व करा लें। 5 हजार अदा करने वाले, मुझे 100 ऐसे दीवानों और फरसानों की जरूरत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गुलामी मुस्तफ़ा कहीं खामोश नहीं बैठता, इसलिए मैं खामोशी के आलम में आपको नहीं देखना चाहता हूँ। तेजी के साथ मगरिब का करीब आ रहा है और वक्त सईद भी करीब, मगरिब की अजान का वक्त करीब आ रहा है। मगरिब की अजान भी आपके लिए शाहिद हो जाएगी और अजान नमाज भी जमात भी शाहिद हो जाएगी और ये उलमाए किराम भी शाहिद हो जाएंगे। इसलिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब हाजी मोहम्मद अजीज साहब, सुखई साहब अल मदीना मस्जिद की तामीर के लिए 10,000 का नज़ारा पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और उसके साथ साथ भी अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें 100 ऐसे अफराद की जरूरत है जो 2,500 गिल्डर पेश करवाकर अल मदीना मस्जिद की तामीर में अपने नाम को लिखा लें और जन्नत में अपने महल के हकदार हो जाएं। 100 ऐसे अफराद की जरूरत है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जो 2,500 पेश करें। मुझे उम्मीद है कि इस मजमे में बेशुमार ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनके लिए 2,500 या 5,000 की कोई हैसियत नहीं है। परवरदिगार आलम के काम से उनको तौफीक ये मिली है। सब कुछ तो अल्लाह ताला का ये अता किया हुआ है, अगर उसके नाम के लिए पेश करते हैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुभान अल्लाह उसके करवट करवट जन्नत अता फरमाए और खुद हमको अपना नाम नहीं, अल्लाह सुभान अल्लाह, और खुद के तरफ से भी एक मीनार 17,500, कुल 35,000 और 17 मुसल्ला। अल्लाह सुभान ताला उनकी उम्र में रहमत और बरकत अता फरमाए, तिजारत में बरकत और रहमत अता आमीन। और एक सदरुल जुम्मन की तरफ से 1100 ईंटें अल्लाह और महंगा 165 गिरदर का हाजी मोहम्मद रमजान बेग साहब की तरफ से 5,000। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुन नबी, अज़मते मुस्तफा, इस्लाम, अल मदीना मस्जिद। जनाब हाजी रमजान बैग साहब की तरफ से 5,000, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। भाई दाऊद महताब की तरफ से एक पिलर 1100 गिरदर का। हाजी
ईमान खान लतीफ खान के तरफ से गुंबद मेहराब के लिए अपना नौकरी पाए और नियत किया था कि इसी सिलसिले में उसकी पहली तनख्वाह देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके तरक्की अता फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं मुतज़मीन से गुजारिश करूंगा कि हमारे मुहतरम बुजुर्गों के यहाँ जिलों में और दरमियान में आप जरा तशरीफ ले जाएं ताकि बहुत सारे हज़रात मुंतज़िर हैं वो अपने नाम को लिखाएं और अपनी खिदमत को पेश करें। जनाब हाजी नूर मोहम्मद साहब एमस्टर्डम तैयबा के जो हैं उनकी तरफ से 2,500 लीटर अल्लाह ताला कबूल फरमाए और नूर पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से इनके क़ुलूब को मनव्वर मुजल्ला फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब वाजिद अली साहब गुलई अपने मरहूम वालिद साहब की सारे सवाब के लिए 1,000 लीटर अता फरमा रहे हैं दिन और बरकतों से इन्हें मालामाल। तमाम हाज़रीन, तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला अपनी रहमतों से सरफराज फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, सास के लिए 300 रुपये, अपनी सास के लिए 300 रुपए। अल्लाह अकबर। हर एक का हक अदा कर रहे हैं। परवरदिगार आलम अपनी रहमतों से इनको नवाजे। जी ससुर साहब की तरफ से रुकना मत भाई, अच्छा जारी रखना। देने वाले ज्यादा समझते हैं, ये समझते कबूल फरमाए। जी जी नन्हे खान हुसैन साहब की तरफ से 5,000 अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। जनाब हाजी बशारा साहब भी तशरीफ फरमा है। एमस्टर्डम से जनाब बसनू फैमिली भी मौजूद है। इन तमाम जनाब हाजी बबीजी साहब अपनी वालदा की तरफ से 1,000 अता फरमा रहे हैं। परवरदिगार आलम इसे कबूल फरमाए। देखिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कोई मामूली काम नहीं है, मस्जिद की तामीर का काम है। आपको जज्बे सरफरोशी से काम लेना होगा और जज्बे बेदारी से काम लेना होगा। जनाब हाजी मुकीम साहब, मौलाना फारिस साहब और मौलाना फैसल के वारिस की तरफ से 500 रुपये अभी हमारी के लिए और 500 रुपये सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। जनाब हाजी मुकीम साहब अपने दोनों फर्जंद जो अल्हम्दुलिल्लाह आलिम हैं, हज़रत मौलाना फारिस मुकीम साहब और हज़रत मौलाना फैसल मुकीम साहब, अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उलूम नाफिया से अल्लाह ताला मज़ीद मुज़य्यन फरमाए। उनके लिए 500 और दादा के लिए 500, नानी के लिए 500। अल्लाह ताला जो मरहूमियां हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम अता फरमाए। परवरदिगार आलम करवट करवट अपनी रहमतों से नवाजे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी रहमान डॉक्टर साहब की तरफ से 313। सुभान अल्लाह। ये तादाद जब आती है तो असहाबे बद्र की तादाद की याद ताज़ा हो जाती है। 313 तो रफ्ता था ज़माना। अल्लाह अकबर। असहाबे बद्र 5,000 जनाब हुसैन बसनू साहब की तरफ से। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। 5,000 जनाब हुसैन बसनू साहब की तरफ से। और कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनको भी मैं देख रहा हूँ। अजीज़ान अल्लाह ताला उनकी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जनाब हाजी वलीदीन साहब जो जामिया के खजानची हैं, उन्होंने अपने वालिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए 1500 लीटर अता फरमाया है। परवरदिगार आलम और अपनी बीवी की तरफ से 1,000 परवरदिगार आलम इनके उम्रों में बरकतें अता फरमाए, दीन और दुनिया की सादतें नसीब फरमाए, सेहत कुल्ली और शिफाए आजिल अता फरमाए। 130 लीटर परवरदिगार आलम जन्नत में इनको सोने और चांदी के ईंट का महल अता फरमाएगा। आज यहाँ मस्जिद की तामीर के लिए ये पत्थर की ईंटें रहेंगे, लेकिन यकीन कीजिए कि जन्नत में इनको सोने और ईंट की ईंटों का महल मिलेगा। अल्लाह ताला जन्नत में महल अता फरमाए। मोहम्मद लतीफ की तरफ से अपने बेटे की तरफ से दो मुसल्ले, 2 बेटे। सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद रशीद साहब अपने बेटों की तरफ से 2 मुसल्ले अता कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। जी
सुभान अल्लाह। नूर इस्लाम के फोर्सिकर जनाब हाजी मर्दू साहब की तरफ से एक पाक 1100 अता कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें मजीद दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और दीन और दुनिया की बरकत को हुस्ना से मालामाल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब हाजी अब्दुल रहीम साहब ने 1000 अता फरमाया, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। हाजी शेख करीम साहब ने 100 अता फरमाया, अल्लाह ताला दीन और दुनिया की बरकत से मालामाल फरमाए। साहब अली साहब ने 1100 अता फरमाया। परवरदिगार आलम हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामतों बरकत से मालामाल फरमाए और सहाबे किराम की बरकतों से मालामाल फरमाए। जी जनाब हाजी इस्माइल साहब की तरफ से 1 मिलियन 1100 रुपए। रुखसाना साहिबा की तरफ से 1 मिलियन 1100 रुपए, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। फैयाज मुफीद साहब की तरफ से 250 लीटर, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में महल अता फरमाए। देखिए अल्लाह वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है। आपकी नौजवानी अगर ये दीन और मिल्लत की तामीर के लिए खर्च हो तो यकीन जानिए जन्नत के नौजवान सय्यदुल शुहदा इमाम आली मकाम और उनके बिरादर अकबर हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुलामी में आपको जन्नत नसीब होगी। इसलिए सय्यदुल शुहदा इमाम हुसैन और इमाम हसन का सदका देते हुए मैं नौजवानों से अली अकबर का सदका देते हुए कि जिन्होंने दीन के खातिर अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, इनका सदका देते हुए नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा कि हमारे बुजुर्ग हजरात तो बढ़ चढ़ करके हिस्से ले रहे थे, लेकिन नौजवानों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि उनका भी नाम लेना चाहिए। एक देखिए ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि 5,000 देना है या 2,500 देना है। जो भी आपकी रकम चाहे वो 1 सेंट हो अगर मस्जिद में लग गई तो खुदा की कसम आपके लिए जमानत हो गई कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी रहमत मुबारक मुबारक जी सुभान अल्लाह। जनाब हाजी बशार साहब की तरफ से 5,000 अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यानी 1100 की 1011 और उसके का सदका कि मेराज की रात जब प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बे खास में गए तो वहां हजरत बिलाल हबशी के पांव की आवाज को सुना। सुभान अल्लाह। जनाब हाफिज बिलाल साहब ने हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े तुफ़ैल में उनके काम से मस्जिद अल मदीना की तामीर के लिए 500 अता कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन पर करम फरमाए और इनके फ्यूज को जारी साइड फरमाए। जनाब हाफिज मोहम्मद बिलाल साहब, हाफिज मोहम्मद असलम साहब, जनाब झगरू साहब ने 50 अता फरमाया। सुभान अल्लाह। रहमत के लिए झगड़ रहे हैं, अल्लाह ताला रहमत के लिए सब कर रहे हैं। परवरदिगार आलम बेशुमार रहमतों से नवाजे हैं। जनाब हाजी करम अली साहब तीन बच्चों की तरफ से, जनाब करम अली साहब 3 बच्चों की तरफ से 3 मुसल्ला और अपनी मरहूमा अम्मी की तरफ से 1020 बिल्डर का एक चिराग। सुभान अल्लाह। जनाब मरहूम हाजी अब्दुल जब्बार साहब जो 16 के हैं उनकी के रूहे पुरफुतू को इशारे सवाब के लिए 1100 अता कर रहे हैं। अल्लाह 1100 ईटा यानी 530 बिल्डर अता कर रहे हैं। परवरदिगार आलम इसे कबूल फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, कब्रों को बुक़्ते नूर बनाए और मादेगा। मैं गुजारिश करूंगा कि मुंतज़िरीन से कि वो हाज़रीन और सामीन की तरफ झोलियों को गिराएं ताकि ये भरपूर दिल खोल करके हिस्सा लें। जनाब हाजी सुखई साहब के बेटे जो मरहूम हो गए हैं मोहम्मद हनीफ साहब, अल्लाह ताला जन्नत में उनको नसीब जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनकी तरफ से अल्लाह अकबर, उनकी तरफ से उनकी रूहे पाक को, रूहे पुरफुतूह को इशारे सवाब करने के लिए 10,000 मस्जिद की तामीर के लिए। नारे तकबीर, नारे